Good evening, students. Hope you are well, fine, fit, and preparing for your upcoming exams, SEBI, RBI, Grade B, and all other exams which will be coming in this year. So, myself, Ankur Badwar, and we will start with the second week of May current affairs, that is from 3rd of to 9th of May. As I told you that current affairs my week will be from Sunday to Saturday. So Sunday was on 3rd of May and Saturday was on 9th of May. So we will cover that. For RBCB NABARD covers both phase 1 and phase 2. I need not tell you the importance of the current affairs, and it also covers these exams, all the banking insurance exam which will be coming out on the year. But the main focus will be on RBCB NABARD, both phase 1 and phase 2. It is primarily much more technical in nature as compared to the type of questions which usually come in SBI, IBPS or LIC. Okay, so let's start. This is folder number 1. 1 means subfolder number 1. As you know, total 15 subfolders are there in the current affairs. I had divided the entire current affairs into 15 subfolders, and 5th is the month of May. So let's start. RBI sold $500 million in NDF market to keep rupee stable. Now you should know what is NDF. It is just hold on. It is non-deliverable forwards. I made a MCQ also in daily quiz which I am posting in Telegram. Okay. So what basically it is a financial term. Okay. There is always a price difference, the currency fluctuations all over the world. So whatever the spot price is there, whatever the trading is there, forward is there, regarding that difference is done in through the non-deliverable forwards. It is also known as forward contract for differences, FCD. Okay, so both can come in your exam. This one current affair too, and regarding other things, what is important? Sold a net 500 million. Now this figure is not important as so, but since it is happening bigger such intervention at least a year, it may come, although a rare possibility. Okay, so we will go ahead with the next current affairs. We will see. Just hold on. Yes, state oil companies state oil companies take CP route. Okay, commercial paper, CP commercial paper. I have already then explained in detail in the April month video, so I will not be explaining it again. The commercial paper they issued were having a maturity of 3 months. Okay, so let's see. Commercial paper is commonly used as a I made a MCQ on this also. It's an unsecured short-term debt instrument. That short-term means it is usually less than 270 days. Okay, you can say 9 months से कम ही होता है, and it is unsecured. It is not backed by any security. जो बोरिंग जो भी कंपनीज होती है, तो देखो अनसिक्योर्ड है तो कौन सी कंपनीज मनी को ले पाएगी? जो those are highly reputed companies like Indian Oil और रिलायंस, टाटा. इन कंपनीज को मनी रेज करने के लिए मार्केट से कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती. एक सिर्फ सीधा कमर्शियल पेपर इशू करते हैं एंड दे आर एबल टू गेट द मनी दे नीड. सो ओके, सो दे शुड. क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें से? एक जो मैंने आपको एमसीक्यू बना के दिया था, व्हाट काइंड ऑफ कमर्शियल पेपर इज अ अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट. सीधा डेफिनेशन पूछ सकते हैं. ये पूछ सकते हैं शॉर्ट टर्म का क्या यूजुअल टर्म होता है, 270 डेज से कम होता है. ओके, these kind of 2 MCQs can be formed from this current affairs. So we will move to next. FPI factor in India rating cut that quick bond. So basically what this is saying, when you will read this, you will get to know basically that there is a fear of sovereign rating downgrade. India की जो अभी है that is BAA टू नेगेटिव. ये इंडिया की करंट रेटिंग है मूडी के अकॉर्डिंग. वैसे स्टैंडर्ड पुअर फिच उन्होंने भी ऑलमोस्ट शायद ये रेटिंग दे रखी है. अब जैसे ये डाउनग्रेड होगा, डाउनग्रेड होने से क्या होता है, जो FPI होते हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, जो फर्दर डिवाइडेड होते हैं QFI क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर और FIIs
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जैसे, और ये हमारे स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट में जैसे NSE BSE में इन्वेस्ट करते हैं। जब रेटिंग डाउनग्रेड्स होती है तो ये इनमें इन्वेस्टमेंट सफ़र होने के चांसेस होते हैं। मतलब दे सी दैट यस कि फिजिकल डेफिसिट हाई है, डेब्ट टू GDP रेशियो हाई है, सो मे बी जो फिजिकल पैरामीटर्स है दैट आर नॉट स्टेबल एंड इट मे डिटोरेट इन फ्यूचर। सो वो फिर ऐसी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट्स कम होने के डर रहता है। तो वही ये चीज़ है। इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, सी इट बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिया है, आप इसको ऐसे और इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हो इन पॉइंट्स को। दूसरा S&P, स्टैंडर्ड पुअर, फिच, मूडी, इन सब के हेडक्वार्टर्स कभी भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो सेबी का हो, चाहे वो आपका RBI का हो, कभी भी इनके हेडक्वार्टर्स पूछे जा सकते हैं। ऑलरेडी मैं अप्रैल की वीडियो में बता चुका हूँ इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। मैं दोबारा इस PDF में मैंने दोबारा से इसमें रिपीट नहीं किया है। एनीवेज आप मुझे लाइव चैट में और या फिर कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ इनके तीनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। सो विल मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर। सेबी रिजेक्ट प्रपोजल ऑन यूजिंग द QIP प्राइसिंग नॉर्म। सो QIP में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ये पूछ सकते हैं व्हाट इज P इन QIP, व्हाट इज लेट्स से Q इन QIP, और पूरा QIP की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ये इसका मैंने MCQ आपको डेली क्विज में भी दिया था, आपको याद होगा। इफ सो अ प्रेफर्ड रूट फॉर इक्विटी फंड रेजिंग। अब QIP में क्या होता है कि इसमें जो लीगल पेपर वर्क होता है, ठीक है, जैसे मान लो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कंपनीज को लेके आना, तो उसमें काफ़ी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पेपर वर्क, लीगल वो सब करने होते हैं। बट इसमें उन सब की जगह सीधा जो कंपनीज है वो कैपिटल रेज कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू सबमिट लीगल पेपर वर्क टू मार्केट रेगुलेटर। यू नो द मार्केट रेगुलेटर दैट इज सेबी। ओके, सी क्रेडिट द रूल टू अवॉइड द डिपेंडेंस ऑन कंपनी और फॉरेन कैपिटल सोर्सेज। तो इन सब के लिए एक टर्म है फाइनेंस। इसमें जो क्वेश्चन आएगा फेज़ 1 में आने के चांसेस काफ़ी कम है, बट फाइनेंस करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। आपका फाइनेंस में कभी भी QIP के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है। सो फॉर दैट एक MCQ तो ये बन गया। दूसरा इसकी डेफिनेशन में से एक क्वेश्चन बन सकता है। सो 2 MCQs आपके इस करंट अफेयर में से बन सकते हैं। और अगर ये पूछ ले कि रेगुलेटर कौन है, आई डोंट थिंक RBI SEBI में ऐसा इजी क्वेश्चन पूछेगा, बट हाँ SBI IBPS में कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। मुझे याद आ रहा है HDI, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन SBI PO 2018 का है मेंस का, व्हाट इज H इन HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, बट RBI और इन सब में चांसेस ऐसे क्वेश्चन के काफ़ी कम होते हैं, बट आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर, गवर्नमेंट एम्स टू रेज 20,000 करोड़ फ्रॉम ITC एक्सिस स्टेक। ये जरूरी नहीं है, आप ध्यान से देखें, गवर्नमेंट है और ITC और एक्सिस, दीज आर दी प्राइवेट कंपनीज। तो यू विल बी वंडरिंग कि कहाँ से सर इनके पास गवर्नमेंट ने इनकी शेयर होल्डिंग क्यों ले रखी है। सी गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बना रखा है दैट इज़ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर पूरा फुल फॉर्म हो तो स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये एक म्यूचुअल फंड है गवर्नमेंट का एक तरह का, ठीक है, और ये फिर इन्वेस्ट करता है कंपनीज में। तो इसने इन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है, और गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया कि इन कंपनीज का देखो 7.9 फॉर ITC में है, 4.69% एक्सिस बैंक में इनका स्टेक सेल करके गवर्नमेंट 22,000 करोड़ इनके थ्रू रेज करेगी। ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास फंडिंग का बहुत ज़्यादा क्रंच है, जहाँ से भी वो पैसा ले सकते हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। ओके, क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये कभी भी नहीं पूछेंगे कि 20,000 रेज किया इनको सेल करके, ना ये पूछेंगे कितना स्टेक सेल किया, ठीक है, दैट विल नॉट कम। एक पूछा जा सकता है, ये सूती में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस, फुल फॉर्म क्या है इसकी, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और जो दूसरा क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको डेली MCQ में भी दिया था, टारगेट किया डिसइन्वेस्टमेंट का फिजिकल ईयर 2021 का बजट में हमने किया था 2.10 लाख करोड़। इस वजह से 90,000 करोड़ वो फाइनेंशियल कंपनीज के सेल करेंगे, उसका स्टेक सेल करेंगे। लाइक LIC का प्लानिंग में है कि लाइक अभी 100% गवर्नमेंट है, इसमें से 10% या 15% के आसपास सेल करके 90,000 करोड़ रुपीज़ यहाँ से गवर्नमेंट टारगेट पूरा करेगी, और बाकी का बाकी जो कंपनीज है लाइक BPCL, एयर इंडिया, इन सब का बेचने का प्लान चल रहा था, जो अभी कोरोना वायरस की वजह से डिले हो गया है, और शायद अब होगा भी नहीं, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन इतनी गिर चुकी है कि गवर्नमेंट को काफ़ी कम पैसा मिलेगा इस टाइम पे अगर कंपनी सेल कर दिया। अब ये 2019-20 का डाटा दे रखा है, टारगेट 1.05 लाख करोड़ था। आपको पता होगा, कई बार मैंने बोला था एग्जाम में, कई बार आ भी चुका कई एग्जाम से टारगेट, और गवर्नमेंट सिर्फ 65,000 करोड़ के आसपास अपना टारगेट इन्होंने रिवाइज़ किया था, रिवाइज एस्टीमेट। सी इट वाज रिवाइज एस्टीमेट, इट वाज बजट एस्टीमेट। गवर्नमेंट का टारगेट था कि 31 मार्च तक वो 65,000 जनरेट कर लेगी, बट
ये भी नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना वायरस आ गया मिड मार्च के आसपास और उसने सारे टारगेट्स की बोले तो वाट लगा दी। लेट्स गो एट। आर बी कैंसिल लाइसेंस ऑफ सी के पी कोऑपरेटिव बैंक। हाँ, ये इसमें मैं बता दूँ, इस पर कभी भी क्वेश्चन 2-3 MCQ इस करंट अफेयर में से बन सकते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टारगेट्स। आर बी कैंसिल लाइसेंस सी के पी कोऑपरेटिव बैंक मुंबई। तो यू शुड नो कि किसका रिसेंटली कैंसिल किया, दैट इज सी के पी कोऑपरेटिव बैंक। कहाँ लोकेटेड है? मुंबई में उसके हेडक्वार्टर। बस इसमें से एक ही क्वेश्चन बन सकता है, बस ये आपको पता होना चाहिए। स्पेशली सेबी का एग्जाम पास में है, अगर 4 जुलाई को होता है तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। We will move to next current affairs. SEBI and other large lenders revive bad bank proposals. Now ये बहुत ही इकोनॉमिक सर्वे मुझे याद आ रहा है, ये आई थिंक 2017 या 18 में पूरा एक चैप्टर था बैड बैंक के ऊपर। हालांकि आपको अब जरूरत नहीं है उसको पूरा पढ़ो, बट मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ बैड बैंक होता क्या है। बैड बैंक इज़ अ टाइप ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जैसे मान लो SBI है या PNB है, इन सब के जो भी लोन्स होगा जो ये रिकवर नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, उन लोन्स को एक ARC को दे देंगे। ARC असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको जो फिर उसका काम होगा कि वो इस मनी को रिकवर करेगा। उससे क्या होगा, जो बैंक है अपने जो कोर ऑपरेशंस है जैसे लैंडिंग और बोरिंग और सॉरी ये जो लैंडिंग है और डिपॉजिट लेना, इन सब पे फोकस कर पाएगा। उसका सारा जो ये रिकवरी का प्रोसेस होता है वो ARC करेगी। वो अपना कमीशन लेगी, नो डाउट, जो भी उसका है टेक अपना लेगी, बट उसका जो फालतू का जो टाइम वेस्ट हो रहा है बैंकों का इन सब में, वो नहीं होगा। दैट इज़ ARC। अब बैड बैंक क्या है? बैड बैंक क्या है? एक बड़े बैड बैंक की बात चल रही थी, जिसको दैट विल बी गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग होगी उसमें, मतलब गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। वो होता क्या है, ARC भी आजकल जितनी भी ARC है मोस्टली दे आर प्राइवेट कंपनीज, वो भी उनका ही लोन लेगी जिसको उनको कोई होप दिखती है कि हम रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लिया ऐसा केस है वो बाहर ही चला गया तो क्या रिकवर करेंगे, बहुत ऐसे केसेस होते हैं। तो वो ARC कंपनीज की जो प्राइवेट होती है दे शाय अवे कि हाँ नहीं, फंसना नहीं है। तो एक प्रपोजल मूव हुआ था इकोनॉमिक सर्वे में कि एक गवर्नमेंट का बैड बैंक बनाते हैं हम, कि जितने भी गवर्नमेंट PSCBs में जो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं हम, वो सारा हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। फिर वो एक स्पेशल एजेंसी होगी जो रिकवरी करेगी, जिससे जो बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो अपने कोर ऑपरेशंस पे फोकस कर पाएगी। बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया उस वक्त। काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ कि ऐसा ना हो कि जो जैसे ये जो SBI ने मान लो जैसे मेहुल चोस्की को लोन दिया, ओके, या नीरव मोदी को लोन दिया। अब वो लोन हो गया डिफ़ॉल्ट। अब SBI ने क्या किया, SBI ने वो पास ऑन कर दिया वो जो बैड डेट है अपना ये बैड बैंक को, ओके। अब इसकी गारंटी कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रहा है। अगर ये भी रिकवर नहीं कर पाई, SBI तो कर ही नहीं पाई थी, देन इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन हो सकते हैं कि आपने जानबूझ के इस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया, जो भी है। तो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया। बट अब जो कोविड-19 की सिचुएशन आई है, इकोनॉमी की क्राइसिस आया है, तो फिर से इस पर बात चालू हो गई है। तो दैट वाज द न्यूज़। क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका? ARC क्या होती है? व्हाट इज़ ARC? ARC में R क्या होता है? ARC में C क्या होता है? इस तरह से एक क्वेश्चन MCQ बन सकता है आपका। और देखते हैं और क्या बन सकता है। बस अब दूसरा SBI के हेडक्वार्टर्स, ICICI के हेडक्वार्टर्स जैसे है, ये आपको पता होनी चाहिए। इस पर भी एक MCQ बन सकता है। ये मैंने दिया भी होगा आपको हेडक्वार्टर्स, नहीं दिया या आई हैव गिवन। SBI के भी मुंबई है, ICICI के भी मुंबई में है, तो ये दूसरा MCQ इनमें से बन सकता है। सो यही 2-3 MCQs इसमें से बन सकते हैं। वी विल मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। कोविड-19 ब्लो रिजल्ट्स इन स्टीप फॉल इन अप्रैल सर्विस एक्टिविटी। IHS मार्केट का सर्वे काफ़ी रेगुलरली आ रहा है। सर्विस अलग आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अलग आ रहा है, फिर कंबाइंड भी आ रहा है। अब आप ध्यान से देखो इसको, मार्च में हुआ क्या है, सॉरी अप्रैल में क्या हुआ है, दैट इसका सिर्फ जो कॉन्फिडेंस सर्वे है दैट इज़ ओनली 5.5 रह गया है, और मार्च में 49.3 था। सो 49.3 से सीधा 5.4 पे आ गया है। यू कैन सी व्हाट इज़ द सिचुएशन। अब ये 50 का इसमें पैरामीटर होता है, 50 से कम नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, 50 से पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, और अब तो ये सीधा 5.4 पे आ गया। सच इज़ दी कंडीशन इज़ इंडीड वेरी बैड, नॉट फॉर इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर इंडिया की ज़्यादा बुरी हो सकती है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी पहले ही क्राइसिस में थी, कोरोना वायरस से पहले ही बहुत बुरी हालत हो रही थी। तो इसके हेडक्वार्टर्स पूछे जा सकते हैं, आपको मैंने MCQ दिया भी था, दैट इज लंदन UK। यू नीड टू रिमेंबर दैट। सो विल मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। CKP डिपॉजिटर्स, ये जो अभी लाइसेंस कैंसिल की है,
अब जो अभी आपको याद होगा बजट में हमने डिटेल में किया था कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, इसने लिमिट जो मान लो आपके किसी बैंक में डिपॉजिट है और वो बैंक फेल हो जाता है या बैंक करप्ट हो जाता है, तो ये जो एजेंसी है उसमें गारंटी आपको प्रोवाइड करती है कि हाँ फेल भी हो गया। तो पहले क्या था, 1 लाख रुपए तक की गारंटी थी, अब उसको बढ़ा के बजट में 5 लाख कर दिया था। तो जो अब ये जो लाइसेंस कैंसिल किया आरबीआई ने, तो इसके जो डिपॉजिटर्स है वो फर्स्ट बेनिफिशियरी होंगे इसके। ये करंट अफेयर्स है क्वेश्चन, इसके ऊपर डेफिनेटली कभी भी आ सकता है कि इसकी लिमिट क्या है। इसका मैंने क्वेश्चन आपको दिया भी था, 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख हो गई है। और डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट कॉर्पोरेशन का फुल फॉर्म या इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा एमसीक्यू और तीसरा एमसीक्यू बन सकता है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है DICGC के। ये भी मुझे लाइव चैट या कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू नो इट। सो वील मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर। विस्टा टू इन्वेस्ट 11,367 जस्ट होल्ड ऑन इन दी जियो प्लेटफॉर्म्स। नाउ देखो मैं यूजली ऐसे क्वेश्चन नहीं देता हूँ कि इसने इसमें इन्वेस्ट किया, इसने उसको खरीदा, वो क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही रेयरली आते हैं। इसका पर्पस क्या था, देखो ये सबसे बड़ी डील थी आपकी फेसबुक वाली, ये तो आपको याद रखनी है। 9.9% स्टेक फेसबुक ने लिया था, फिर सिल्वर लेक ने 4% के आसपास लिया, अब विस्टा ने इसको इन्वेस्ट किया। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा मोस्ट लाइकली फेसबुक पे से ही आएगा। ये सबसे बड़ी डील थी हमारी, और सिल्वर लेक और विस्टा से आने के चांसेस बहुत कम हैं। बट सिंस ये जो न्यूज़ है काफ़ी रेगुलरली न्यूज़ में आ रही है, सो रेयर पॉसिबिलिटी है कि आ जाए, क्योंकि डेली ही मैं देख रहा हूँ कि फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में और सब में रिपीट हो रहा है। बट स्टिल यू नीड टू रिमेंबर मेनली फेसबुक डील, फेसबुक जियो डील वही मेन है, उसके चांसेस सबसे ज़्यादा। और फेसबुक के हेडक्वार्टर्स पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। सो कमेंट प्लीज़ टाइप इन द कमेंट कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स। सो विल मूव टू यही 2 MCQ इसमें से बनते हैं। विल मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर। गवर्नमेंट टू बोरो 4.2 लाख मोर इन फिस्कल ईयर 21। ये तो फिर भी काफ़ी कम फिगर है, ये बहुत ज़्यादा होने वाला है जहाँ तक मेरी बात की जाए। अगर गवर्नमेंट ने सोच ही लिया कि अपने स्पेंडिंग नहीं करनी तो अलग बात है, बट अगर उसने मन बना ले दैट वी हैव टू हेल्प दी कंट्री और द इकोनॉमी इन दिस केस, तो ये जो 4.2 लाख बहुत ज़्यादा, ये बहुत कम फिगर है, बहुत ज़्यादा होने वाला है। लेट्स सी। टारगेट था 7.8 लाख करोड़ का, पहले मैं अप्रैल के करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसको बढ़ा के अब 12 लाख करोड़ कर दिया गया है। ओके, फिजिकल स्टिमुलस 1 आ चुका था जिसमें 1.7 लाख करोड़ का स्टिमुलस दिया था फाइनेंस मिनिस्टर ने, आपको याद होगा, जिस दैट इज इक्वल टू 0.7% ऑफ इंडियन GDP। अब सेकंड स्टिमुलस बहुत ही जल्दी आने वाला है। yesterday only I was seeing breaking news that second stimulus on the way. So let's see कितना होता है इकोनॉमिस्ट आर सेइंग कि 9-10% का होना चाहिए ऑफ GDP। अभी तक सिर्फ हमने 0.7% का दिया, उसमें भी आप देखोगे 1.7 में से 50,000 करोड़ वही थे जो स्टेट्स का GST ड्यू था, वही पैकेज में इंक्लूड करके उन्होंने 1.7 लाख करोड़ बना दिया। दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, नहीं बनाना चाहिए था। but still 9 to 10% should be the package, but I don't think कि गवर्नमेंट इतना पैकेज देगी। लेट्स वेट 2-3 डेज में, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ये पैकेज अनाउंस हो जाएगा एंड वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीक करंट अफेयर्स देन ओनली। ओके, सो लेट्स लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। श्योरली ये टारगेट पूछा जा सकता है। 12 लाख करोड़ हो गया, अगर ये मान लो आपके CB तक का टारगेट चेंज नहीं होता तो टारगेट पूछा जा सकता है एक चीज़, RB तक अगर ये टारगेट चेंज नहीं हुआ तो पूछा जा सकता है 2 चीज़। ओके, अगर टारगेट चेंज होता है तो फिर वो अपडेटेड टारगेट पूछा जाएगा, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना। और फिजिकल स्टूडेंट नीड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट दो इट कुड रेज द इंटरेस्ट रेट एंड क्राउड आउट द प्राइवेट सेक्टर। क्राउडिंग आउट मैं डिटेल में बता चुका हूँ आपको, अप्रैल की वीडियो में भी बता चुका हूँ, मैं फिर से डिटेल में तो नहीं बताऊँगा बट ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। क्राउडिंग आउट ये होता है, मान लो एक मटका है, मटके में बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है। ये कॉइन्स मतलब मटका एक बैंक की तरह काम कर रहा है, उसमें बहुत सारे कॉइन्स हैं। ये लैंडिंग के लिए बैठा है, ये इस मटका ये लैंडिंग करेगा, ये बैंक जो है लैंड करेगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट। अब ये पैसा है और सबके सब यहीं से ले सकते हैं, पैसा जो भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट भी यहीं से ले सकती है, प्राइवेट भी यही ले सकती है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोरोइंग कर ली, यहाँ से मटके से कॉइन्स निकाल लिए, तो प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ही कम कॉइन्स बचाएंगे जो बोरोइंग कर सके, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट, मतलब गवर्नमेंट ने क्राउड आउट कर दिया पैसा, मतलब खुद बोरिंग कर ली और प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत कम पैसा बचा। सो दैट इज नोन एज क्राउडिंग आउट। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मटका थोड़ा ऐसा बनेगा, ठीक है, यू, हाँ
ड्राइंग में अच्छी इंप्रूव करूँगा, ऐसा मटका ऐसा वाला, इसके अंदर ये गोल्ड कॉइन्स है, गोल्ड कॉइन्स, ओके, गोल्ड कॉइन। तो कहा थे हम, हाँ, यस। फिजिकल स्टिमुलस नीडेड टू सपोर्ट द इकोनॉमी दो इट कुड रेज इंटरेस्ट रेट एंड क्राउड आउट द प्राइवेट सेक्टर। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी क्योंकि पैसा अगर कम हो गया, गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया और कम लैंडिंग के लिए पैसा बचा या कॉइन्स बचे, तो नो नेचुरली उसका डिमांड हाई हो जाएगी, डिमांड हाई होगा तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। वेरी सिंपल कंसेप्ट। आई होप कि ये पता होगा। सेकंड एमसीक्यू इसमें से बन सकता है। एक तो मैंने बता दिया 12 लाख करोड़ में से बनेगा, दूसरा इसमें से कि क्राउड आउट होने पे इंटरेस्ट रेट डाउन होते हैं या बढ़ते हैं। सेकंड एमसीक्यू ये बन सकता है, थोड़ा टेक्निकल होगा। अगर ये आरबीआई में या सेबी में आते क्वेश्चन तो थोड़ा मैं आई विल से मीडियम लेवल क्वेश्चन होगा, इजी लेवल क्वेश्चन में नहीं काउंट करूँगा, क्योंकि ये आप तभी कर पाओगे तब आपके कंसेप्ट थोड़े ठीक होंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी इसको आंसर कर पाने में। ठीक है ना। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें से? ये सब उन्होंने बता रखा है कि क्या परेशानियाँ डिस्क्रिमिनेशन थी, वो नहीं, और ये कैपेक्स क्या टैक्स रेवेन्यू नहीं आ रहा कहीं से। नो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट ऑफ आरबीआई, मैंने इसकी बात की थी, टेलीग्राम में भी बोला था कि अभी गवर्नमेंट को आरबीआई से मोनेटाइज करना चाहिए डेफिसिट, ना कि मार्केट से उठाना चाहिए। बट अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया, जबकि काफ़ी इकोनॉमिस्ट बोल चुके हैं दैट गवर्नमेंट शुड डू दैट। ओके, एनीवेज गवर्नमेंट का अपना फंडा है, उनमें भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बैठे हैं, अरविंद क्या नाम था, सुब्रमण्यम समथिंग। सो दे से नो फ्री लंचेस, कोई भी फ्री का लंच नहीं मिलेगा। अरे भाई, जब बंदा ही नहीं बचेगा तो फ्री लंच का क्या करोगे आप? एनीवेज दैट्स देयर थिंकिंग। आई थिंक इट्स टाइम टू रोल आउट द पर्सेस, ओपन द स्पेंडिंग। ठीक है, एक बार इकोनॉमिक ट्रैक पे आ जाए तब आप नो डाउट अपना जो स्पेंडिंग है उसको कंट्रोल करो, फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल में लाओ। बट दिस इज़ नॉट द टाइम टू कंट्रोल और टू लुक एट योर फिजिकल डेफिसिट। डेफिनेटली जितना मैं समझ पाता हूँ इकोनॉमिक को। एनीवेज ये तीसरा एमसीक्यू बन सकता है कि गवर्नमेंट का क्या बजट एस्टिमेट था बीई। देखो ये बीई अचीव होने ही नहीं वाला, बट अगर बीई पूछे दैट इज़ 3.5%। सिंपल सी बात है, बजट एस्टिमेट अगर पूछे तो आँख बंद करके जय माता दी 3.5% अगर बीई बजट एस्टिमेट पूछे। अब अगले साल फेब में एक रिवाइज एस्टिमेट आएगा, वो अगले साल आएगा, लेकिन आपका एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा, तो या तो बीई पूछेंगे या उस वक्त तक गवर्नमेंट ने कोई नया टारगेट सेट कर लिया हो, करंट अफेयर्स में आया हो, क्योंकि बोरोइंग तो अब गवर्नमेंट करे ही करेगी, चाहे ज़्यादा करे कम करे, करनी तो है ही। तो कोई नया टारगेट अगर गवर्नमेंट सेट करे तो वो फिर आपके एग्जाम में आ सकता है। सो ये 3 एमसीक्यू आपके इस करंट अफेयर में से बनेंगे। वी विल मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू नाउ, जस्ट वेट। बॉन्ड यील्ड टू शूट अप ऑन गवर्नमेंट मूव टू रेज बोरोइंग, ये तो होना ही है। बॉन्ड यील्ड टू शूट अप, अब गवर्नमेंट जब बोरोइंग को, अब गवर्नमेंट ने क्यों होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 12 लाख करोड़ अब वो बोरो करेगी मार्केट से, जिसका सिग्निफिकेंट पोर्शन क्या होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, स्पेशली ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स ही इशू करेगी गवर्नमेंट इसको मीट करने के लिए, और मार्केट से पैसा उठाएगी गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में इनको इशू करेगा। अब जब इतने बॉन्ड्स इशू होएंगे तब नेचुरली बॉन्ड्स मार्केट में ज़्यादा हो जाएंगे, बॉन्ड्स मार्केट में ज़्यादा हो जाएंगे, न्यू बॉन्ड जो गवर्नमेंट के हैं, तो जो प्राइस है उनका, जो एक्सिस्टिंग बॉन्ड्स है उनका प्राइस डाउन होगा, प्राइस डाउन होगा तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। ये मैंने डिटेल में आपको अप्रैल की करंट अफेयर्स वीडियो में बताया था, किसी न किसी वीडियो में, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी कहा था मैं डिटेल में बताऊंगा। मैं बहुत अच्छा डिटेल में बताया कि देखो जब भी कोई नया बॉन्ड होता है या मैंने पूरा इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशन बताया, इंटरेस्ट रेट कम होगा ज़्यादा होगा तो उसका प्राइस में, बॉन्ड प्राइस में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका आपका बॉन्ड यील्ड में क्या फ़र्क पड़ेगा, सारा मैंने डिटेल में बताया था, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है इसमें कि इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड यील्ड में क्या वेरिएशन होता है, तो प्लीज़ मेरी वो वीडियो को आप देखो, दैट विल क्लियर योर कंसेप्ट। अगर आपको नहीं मिल रही वो वीडियो कहाँ पे है, हम मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका लिंक दूंगा कि आप उसका डिटेल में, उस वीडियो के एंड में मैंने समझा रखा है। ओके, सो वी विल, एक तो क्वेश्चन ये हो गया बॉन्ड, ये क्वेश्चन फाइनेंस में खासतौर पे, फाइनेंस का कंसेप्चुअल पार्ट है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस का क्या होगा,
और बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा कम होगा तो उसका बॉन्ड यील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये क्वेश्चंस कभी भी 5-6 एमसीक्यू इस रिलेशन में से ही बन सकते हैं। सो बी प्रिपेयर टू आंसर सच काइंड ऑफ एमसीक्यू। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंस की मैं बात करूँ कि इसमें से फाइनेंस के स्टैटिक क्वेश्चन भी कई बन जाएंगे, ये वही बता रखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर। इकोनॉमी टू बी इन डीप फ्रीज, मतलब मोदी कह रहा है कि भैया 0% ग्रोथ रेट होगी इंडिया की इस फाइनेंशियल ईयर में। उसका एस्टिमेट है, अलग अलग कर रहे हैं। अब मोदी कूदी स्टैंडर्ड पूवर ये सब जो जो एस्टिमेट कर रहे हैं उनकी फिगर रटने मत बैठ जाना 1.7, क्योंकि ये हर 2 महीने में रिवाइज करते रहेंगे। नॉट इम्पोर्टेंट, वेरी लेस चांस और ना के बराबर है। आरबीआई में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो 6 महीने दूर है। ठीक है, सेबी में भी अगर ऐसी रेटिंग आती है, कोई प्रोजेक्शन आती है, क्योंकि सेबी का एग्ज़ाम अगर 4 जुलाई को होता है तो जून में अगर कोई प्रोजेक्शन आती है बस वो करके जाना ज़्यादा, उससे पहले के मत करना, विल नॉट कम, वेरी 0.1% चांस कि इतने पुराने आएंगे। सो इसके मोदी के हेडक्वार्टर्स और ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, न्यूयॉर्क में है। स्टैंडर्ड पूअर, फिच, इन सब के आपको पता होने चाहिए, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। AIAB अप्रूव्स 500 मिलियन कोविड लोन टू इंडिया। अब ये जो फिगर्स है दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, याद रखना, ठीक है, कि इतना फिगर किया, ये तो फिगर ही रटते रह जाओगे, एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। अब एक फिगर में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा अटपुटी फिगर आ भी जाती है 80 क्वेश्चंस में से, उसके लिए 1000 फिगर्स आप रटने तो नहीं बैठोगे उसे एक क्वेश्चन के लिए। दिस इज़ अ वेरी पुअर कोस्ट एफर्ट बेनिफिट रेशियो। ओके, कितना आपने एफर्ट डाला और कितना उसमें से बेनिफिट गेन किया आपने। तो डू नॉट डू, मैंने देखा है कई MCQ मुझे स्टूडेंट्स भेजते हैं, सर ये MCQ करना है नहीं करना, उसमें मतलब ढंग के क्वेश्चन तो होते नहीं, उसमें यही होते हैं फिगर भी, उसने 500 दिया, 600 दिया, 700 दिया, 800। अरे भाई कितनी फिगर्स करोगे, फिगर में ज़िंदगी बीत जाएगी, फिगर ही करते रहोगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में ध्यान दो, क्योंकि वो आपके फाइनेंस और ESI में भी डायरेक्टली हेल्प करेंगे। फिगर फुगर इन सब में ज़्यादा ध्यान मत दो। ओके, नाउ AIB अप्रूव्स 500 मिलियन कोविड लोन टू इंडिया। AIB का सबसे पहले हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है। दूसरा ये इस पर MCQ बन सकता है। इसके हेडक्वार्टर ध्यान रखना, एक हमारा बैंक है NDB, ये मैंने डिटेल में अप्रैल के करंट अफेयर में बताया था। NDB इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम बोलते हैं ब्रिक्स बैंक। ये बीजिंग में है चाइना के, और ये भी चाइना में है, बट इसके हेडक्वार्टर्स शंघाई में है। तो इस पर हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और आई एम श्योर दैट अपकमिंग एग्जाम्स RBI SEBI में भी इस पर क्वेश्चन आते रहेंगे। तो ये आप ध्यान रखना, ये 2 क्वेश्चन इसमें से बने। 500 मिलियन लोन, 600 मिलियन लोन, ये क्वेश्चन नहीं आएगी। ये मैंने दे भी रखा है यहाँ पे। AIB के बीजिंग चाइना में, वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC में, और ADB का मनीला फिलीपींस में। ये तीनों आपके न्यूज़ आइटम में, तो तीनों के मैंने यहाँ पे दे दिए, तो इनमें कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 2-3 करंट अफेयर्स MCQs आपके इस करंट अफेयर्स में से बन सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम सब फोल्डर नंबर 1। जस्ट वेट, okay, so we will move to let's 28. So we will complete it here in this video only, all these subfolders. Okay, this is the end of subfolder number 1. Now we will move to subfolder number 2. There are total 15 subfolders. एक्चुअली इससे पहले इसमें इस वीक में ज़्यादा करंट अफेयर्स है नहीं, और ज़्यादा जो कंसेप्ट हैं वो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका, तो थोड़ा फास्ट पेस पे चल पा रहे हैं हम। तो देखो एक चीज़ याद रखना, मैंने 1 अप्रैल से बनाना चालू किया था, और कुछ कंसेप्ट बॉन्ड डील और ये कमर्शियल पेपर्स में ऑलरेडी वो करंट अफेयर्स अप्रैल के वीडियोस में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। अब मैं हर बार उनको मई के या जून में, क्योंकि ये चीज़ें तो रिपीट होती रहनी है, मैं बार बार उस कंसेप्ट को रिपीट नहीं करूँगा। ओके, अप्रैल में जो मैं बता चुका हूँ वो रिपीट नहीं करूँगा। ऐसे ही मैं कई ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर दे चुका हूँ, तो मैं बार बार हेडक्वार्टर्स नहीं लिखूँगा हर एक PDF में। कभी कभी हो सकता है रिपीट हो जाए, बट आई विल ट्राई टू अवॉइड इट। सो अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो 1 अप्रैल से पूरे के पूरे करंट अफेयर्स की वीडियोस आप पूरा देखो, दैट विल हेल्प यू ग्रेटली। ओके, इन सारे के सारे प्लेलिस्ट, जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें एक अप्रैल करंट अफेयर्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, सारी की सारी वीडियोस उसमें हैं, यू कैन गो एंड वॉच दैट। सो विल मूव टू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में से एक वीक में कोई भी रेलेवेंट न्यूज़ नहीं थी जो आपके एग्जाम में आ सकती है। सो विल मूव टू सबफोल्डर नंबर 3, पोर्टल स्कीम्स एंड कैंपेन। इसमें है CAIT टू लॉन्च नेशनल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस, भारत मार्केट, दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स।
अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आएगा कि भारत मार्केट प्लेस कौन लॉन्च करा, CIT, 3-4 ऑप्शन और आ जाएंगे, इसमें से एक ही करंट अफेयर्स बन सकता है। सो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे आ सकता है, विच इज द स्टेट विच हैज़ अनाउंस दैट फ्री इंश्योरेंस कवर प्रीमियम टू ऑल इट्स पीपल, दैट इज महाराष्ट्र। इट इज़ द फर्स्ट स्टेट इंडिया जिसमें पहले वो ये स्कीम है महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। शी वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, एक चीज़ याद ना, शी वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ज्योतिबा फूले वाज अ 1 2 3 4 5 सोशल रिफॉर्मर XYZ। तो एक क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्वेश्चन आपका बना, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू अनाउंस फ्री इंश्योरेंस फॉर ऑल इट्स पॉपुलेशन, दैट इज महाराष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन ये बना। इस करंट अफेयर में से 2 MCQ आपके बनते हैं। सो विल मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर। सरस कलेक्शन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑन दी GEM पोर्टल। तो आपकी क्या सरस कलेक्शन किसने लॉन्च किया, दैट इज लॉन्च्ड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। फर्स्ट क्वेश्चन, इनिशिएटिव किसका है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को रीनेम किया था। इन दोनों का कंबाइंड इनिशिएटिव है। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, ठीक है। किसने लॉन्च किया, GM एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और इसका क्या है, पर्पस क्या है, शोकेसिंग दी डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट दैट मेड बाय SHG। SHG की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि SHG में फुल फॉर्म क्या है SHG की। जैसे SBI और IBPS में तो क्या आ जाता है, व्हाट इज H इन SHG, व्हाट इज G इन SHG, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। लेकिन RBI SEBI में थोड़ा इतना आसान नहीं आएगा। ये पूछेगा आपके कि GM और ये किसने लॉन्च किया, सरस कलेक्शन। ओके, सो ये 2 MCQs आपके इसमें से बन सकते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट करंट अफेयर्स। एक्सपोर्ट सोप लाइकली टू कंटिन्यू टिल 21 2021 मार्च। ये देखो अभी अप्रैल में एक आई थी न्यूज़ कि 31 दिसंबर 2020 तक गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड किया इस सोप्स को। बट अब ये बात करें कि 3 महीने और इसको एक्सटेंड करेंगे। 40,000 के आसपास ये इंसेंटिव्स है जो गवर्नमेंट देती है, और वो जो किसके अंदर आते हैं, वो MEIS RBA 2018 के अंदर ये फेज़ 1 में क्वेश्चन आया था MEIS के ऊपर। सॉरी, फेज़ 1 में नहीं, ये ESI के अंदर आया था। और आई थिंक 2 मार्कर क्वेश्चन था ये, 2 मार्कर क्वेश्चन ये आपका ESI में आया था 2018 में। सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन अगेन कम इन ESI, कैन आल्सो कम इन फेज़ 1। ओके, MEIS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। 2 होती है, एक SEIS भी होता है, सर्विस इंडिया, और सॉरी सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो एक MCQ ये बन सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि कब तक एक्सटेंड किया है, ये डेट भी पूछी जा सकती है। डेट इज़ अभी होने दो, अभी बात चल रही है कि अगर मोस्ट लाइकली 31 दिसंबर तक एक्सटेंड होगा तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब तक ये वैलिड है ये स्कीम। और आपको याद होगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अगर मैं बताऊँ कि वो भी एक्सटेंड हो गई है 1 साल के लिए। पहले 2020 तक थी हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, 2015 to 20 का टाइम पीरियड था। अब वो 1 ईयर एक ज़्यादा और इंक्रीज़ कर दी गई है। आई होप यू नो दैट। हाँ, ये सब उसके फीचर्स हैं। MEIS में क्या होता है, मैं आपको डिटेल में, मैं ESI में जब स्कीम्स होगा उसमें मैं करवा चुका हूँ। आई थिंक जब वीडियोस बनेगी उसमें मैं फिर से रिपीट कराऊँगा। ये आपको मैं उसमें बता ही चुका पहले से। सो इट्स वेरी सिंपल, फ्री ऑन बोर्ड 235% है और ड्यूटी क्रेडिट्स कितने मिलते हैं ये ध्यान रखना। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, दैट इज़ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। ये क्या होता है, ओके। सो ये एक ड्यूटी ड्रॉबैक होता है, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करते हैं उसको उस पर वेवर मिलता है अगर ये क्रेडिट स्क्रिप्ट अगर उससे रिडीम करते हैं। सो ये पूरा मैकेनिज़्म है। अगर कोई भी डाउट हो आपको इस मैकेनिज़्म को समझने में, मेरे से पूछ लेना। एक बार आप खुद गूगल करके देखो अगर अभी तक क्लियर नहीं है तो। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। सुरक्षित दादा नानी एंड नाना नानी अभियान किसने लॉन्च किया है, बस आपको याद रखना है, दैट इज़ नीति आयोग एंड पिरामल। एक क्वेश्चन एक MCQ तो ये बनेगा। और इसमें से और क्या बन सकता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में कभी भी आपका आंसर आ सकता है। व्हाट आर एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स, ये सबसे जो पुअर सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में पुअर डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया की, वो डिस्ट्रिक्ट्स है। मोदी जी ने इनको जनवरी 2018 में लॉन्च किया था। अभी टोटल 117 डिस्ट्रिक्ट्स है 28 स्टेट्स में। टोटल इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट्स है अराउंड 700 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है, इसमें 117 को अलग से रखा गया जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला गया है कि सबसे पुअर, सबसे सोशल इकोनॉमिक वीक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन पे नीति आयोग और बाकी एजेंसीज को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है।
सो दैट वी हैव अ इक्विटेबल ग्रोथ। इक्विटेबल मतलब ऐसा ना हो कि जो स्टेट्स रिच है वो रिच होती जा रही है, जैसे महाराष्ट्र रिच स्टेट है, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये रिच स्टेट्स है, ये तो रिच होती जा रही है, और जो पुअर स्टेट्स हैं हमारी बिहार उड़ीसा और आपकी झारखंड, वो वैसी की वैसी पुअर है। ऐसा ना हो, वैसे ये डिस्ट्रिक्ट्स में है, अब मान लो 700 डिस्ट्रिक्ट्स है, ऐसा ना हो जो रिच डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे दिल्ली की 13 डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी रिच है, मुंबई की डिस्ट्रिक्ट हुई, जो रिच है वो रिच है, जो पुअर है वो पुअर ही रहेगी, ऐसा ना हो। तो अलग से जो पुअर 170 डिस्ट्रिक्ट है उनको अलग से ले लिया, उन पर ज़्यादा फंडिंग भी हो रही है और ज़्यादा फोकस भी किया जा रहा है। सो दैट इज़ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। इस पे भी क्वेश्चन आपका कभी भी बन सकता है। तो पहले एमसीक्यू तो ये बना, ये दादा नानी कैंपेन किसने लॉन्च किया है, दैट इज नीति आयोग एंड पीरामल। एक क्वेश्चन एमसीक्यू आपका ये बना। दूसरा एमसीक्यू बना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होती है। तीसरा एमसीक्यू बना कब लॉन्च हुई थी, 2018 में हुई थी। चौथा क्वेश्चन बना कि इसका पर्पस क्या है या फिर इसके अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है, 117 डिस्ट्रिक्ट्स है। ये 3-4 एमसीक्यू तो ये बन गए, और 5-6-7 क्वेश्चन आपके नीति आयोग में से बन सकते हैं। अरे यार ये नीति नहीं है, नीति है, ये गलती से में से टाइपिंग मिस्टेक हो गई। नीति आयोग के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, उसका कभी भी चेयरपर्सन भी पूछा जा सकता है, उसका सीईओ भी कभी भी पूछ सकते हैं, दैट इज अमिताभ कांत। तो आप देखोगे कि 6 to 7 एमसीक्यू एक ही करंट अफेयर में से बन रहे हैं। ओके, इसमें से कुछ भी बन सकता है। अब जो मैं क्विज बनाऊंगा वीडियोस, इसके बाद क्विज वीडियो आएगी, मैं ऐसा नहीं कि उसमें इस करंट अफेयर के 6 के या 7 एमसीक्यू जो बन रहे सारे के सारे दूंगा। हो सकता है 1 या 2 मैक्सिमम मैं उसमें से क्विज उठाऊंगा, इसमें से वो क्वेश्चन बनाऊंगा। बाकी मैं इस वीडियो में ऑलरेडी बता रहा हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक 6-7 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच करंट अफेयर्स। अकेला इंसान हूँ, कोई हेल्प भी नहीं है मेरे को, इतना ज़्यादा नहीं कर पाता मैं, लॉकडाउन की वजह से पहले बथेरे काम हो पड़े। सो विल मूव टू नेक्स्ट। गरुड़ पोर्टल लॉन्च टू फास्ट ट्रैक अप्रूवल टू कोविड-19। तो आपको याद रखना व्हाट इज गरुड़, इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। एक तो फुल फॉर्म ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। फिर किसने लॉन्च किया ये पोर्टल, मोका एंड डीजीसीए, ये एयरलाइंस रिलेटेड एजेंसीज है। देखोगे एक तो रेगुलेटर है, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ओके, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया गरुड़ पोर्टल। इसमें से 2 एमसीक्यू आपके बनते हैं। गरुड़ में से पूछ सकते हैं व्हाट इज गरुड़ पोर्टल भी लॉन्च हुआ था, व्हाट इज जी और व्हाट इज ए इन गरुड़, या फिर पूछ सकते हैं गरुड़ पोर्टल किसने लॉन्च किया था, दैट इज मोका एंड डीजीसीए। ओके, या पूछ सकते हैं कि गरुड़ पोर्टल लॉन्च होता है उसमें से एक तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च किया था, तो दूसरी एजेंसी कौन थी। 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन दे देंगे और बताए, आपसे पूछेंगे बताओ जी वो दूसरी एजेंसी कौन सी थी। तो इस तरह के 2-3 एमसीक्यू या 1-2 एमसीक्यू इसमें से बन सकता है। We will move ahead with the, yes, this is the end of subfolder number 3. Now we will move to subfolder number 4, that is appointments and committees. इस वीक में कुछ appointments committees important थे तो हम उसको करेंगे। अधीर रंजन टू कंटिन्यू एज पीएससी चीफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेशली मैं आरबीआई की बात करूँ और सेबी की बात करूँ, पीईएसी के फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, दैट इज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पार्लियामेंट की कमेटी होती है और इसमें हमेशा याद रखना ऑपोजिशन लीडर, एक ऑपोजिशन लीडर जो होता है वही इसका हेड होता है। इसमें आई थिंक 30 मेंबर्स होते हैं, यस 30 मेंबर्स हैं। देखो अब आरबीआई 2018 या 17 में से एक बार पूछा था एस्टीमेट कमेटी के, पार्लियामेंट की एस्टीमेट कमेटी के क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था एस्टीमेट कमेटी में कितने मेंबर्स थे। ये आया था क्वेश्चन आरबीआई में। आप कहोगे सर आरबीआई में ये पॉलिटी के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपके जो करंट अफेयर जो आपका जो सिलेबस है आरबीआई का, उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ईएसआई के अंदर। और ये मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में डिटेल में करवाया था, पूरी पॉलिटी मैंने कोशिश की थी 3-4 घंटे में मैं आपको करवा पाऊँ, और 4 घंटे में हमने ऑलमोस्ट ख़त्म भी किया था ब्रीफ में। और उसमें मैंने कमेटीज़ के बारे में ये बताया था कि देखो कमेटीज़ 30-40 कमेटी से आपको सारी याद नहीं करनी, बस ये ध्यान रखना जो कमेटी न्यूज़ में है उनको याद करके जाना, दैट्स इट। अब ये पीएससी चीफ अभी बनाया तो 1 साल के लिए है, तो इसके ऊपर कभी भी पूछ सकते हैं कि ये करंटली चीफ कौन है पीएससी का या कौन अपॉइंट हुआ था, दैट्स अधीर रंजन। अब 30 मेंबर्स भी पूछा जा सकता है सेबी में, बट आरबीआई में नहीं। अगर मान लो अक्टूबर में आरबीआई का एग्जाम है, अगर ये अगस्त में आया होता है या सितंबर में आया होता तो नंबर ऑफ मेंबर्स पूछे जाने के भी चांस आरबीआई में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट
अभी चांस कम है। और सेबी में तो 30 मेंबर्स पूछे जाने के चांस वैसे ही कम है, क्योंकि उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली अगर आ जाए तो आ जाए। बट आरबीआई में पीएससी का चीफ कभी भी पूछा जा सकता है, दैट इज़ अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस का लीडर है। आपने देखा होगा अगर आप पार्लियामेंट डिबेट्स करते हो कि काफ़ी ज़्यादा बोलते भी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आउटस्पोकन है। सो ही इज़ द वन। और इसमें देखो दो और पब्लिक सॉरी पार्लियामेंट कमेटीज़ का नाम है, दैट इज़ पार्लियामेंट अंडरटेकिंग और एस्टिमेट कमेटी। ये आरबीआई 2017-18 में, मुझे 17-18 में था ये से में इसमें क्वेश्चन आया था। तो ये इसका जो चीफ है मीनाक्षी लेखी और गिरीश बलचंदा बापत सॉरी तो ये भी आप याद कर लीजिए कि इनके हेड कौन है, क्योंकि ये भी अपॉइंटमेंट है, हालांकि मेंबर्स चेंज हुए हैं बट हेड सेम है। तो आपके 3 एमसीक्यू उसमें से बन सकते हैं। एक तो पीएससी का चीफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से पूछेंगे तो पीएससी पूछेंगे, बट हाँ पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टिमेट कमेटी का भी पूछे जा सकते हैं। और सेबी में आने के चांसेस ज़्यादा है अगर आएंगे तो रिसेंटली इन दोनों में से। आरबीआई में पीएससी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। तरुण बजाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई में। देखो अपॉइंटमेंट आलतू फालतू की, उसका एमडी कौन बना, उसका सीएमडी कौन बना, ये मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते भी नहीं है। आप लास्ट 4-5 ईयर्स को उठा लो, बहुत ही रेयरली कोई ऐसा क्वेश्चन आया। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आलतू फालतू का आता भी है तो वो आपको करना भी है तो 1 महीने पहले या 2 महीने पहले जो आपका एग्ज़ाम है उस वाले करने हैं, उससे पहले के बिल्कुल नहीं करने। तो ये बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स थे, अब इन्होंने इनको नॉमिनेट किया गया डायरेक्टर ऑन दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको पता होगा कितने होते हैं, एक तो हमारा गवर्नर होते हैं 1, फिर 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, फिर 10 होते हैं जिसमें से 2 डायरेक्टर नॉमिनेट होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे कुछ होता है इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें से भी ये तरुण बजाज के अपॉइंटमेंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, स्पेशली अगर मैं सेबी की बात करूँ तो, क्योंकि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स ही आती है। और सेबी का अगर 4 जुलाई को है तो आज जो है इट्स अराउंड 10th ऑफ मई तो ये आ सकता है। सो दैट इज द एंड ऑफ सब फोल्डर नंबर 4। विल मूव टू सब फोल्डर नंबर 5, मीटिंग समिट एंड इवेंट। वर्चुअल समिट हुआ था, इसका नाम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, 1 MCQ। मोदी जी समिट, देखो समिट वो होता है जिसमें हेड ऑफ नेशंस अटेंड करते हैं। एक चीज़ याद रखना, समिट और बाकी चीज़ों में मीटिंग्स में क्या डिफरेंस है। समिट हमेशा हेड ऑफ नेशन अटेंड करेगा। इंडिया का हेड ऑफ नेशन कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी। ओके, सो मोदी जी अटेंडेड वर्चुअल, क्योंकि कोरोना वायरस है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारे समिट्स हो रहे हैं आजकल। तो अब ये चीज़, एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि नाम क्या है, ओके, और दूसरा ये बनेगा कि इसका किसकी प्रेसिडेंसी में ये हुआ था आपकी बात, दैट इज प्रेसिडेंसी ऑफ अजरबैजान। ये कंट्री है एशिया के अंदर, आपने देखा होगा ये सेंट्रल एशिया में कंट्री है, बहुत पुअर कंट्री एक तरह से। इसका पूछा जा सकता है, देखो अब ये न्यूज़ में है एक कंट्री, इसकी कैपिटल भी पूछी जा सकती है, इसकी करेंसी भी पूछी जा सकती है। तो यही देखो, जो कंट्री न्यूज़ में है उसी की कैपिटल और करेंसी आपको करनी है। ये नहीं कि 200 कंट्री है तो 200 कंट्रीज़ के आप कैपिटल भी रट्टा मार रहे हो और 200 उसकी करेंसीज भी रट्टा मार रहे हो। दैट इज़ ओनली, दैट विल ओनली वेस्ट योर टाइम। ओनली those which are in news have to be done, keep that in mind. Okay, so we will move to next current affairs, that is operation samudra setu बाय इंडियन नेवी। सिंपल सा है, अभी लॉन्च किया था जिससे जो इंडिया के स्टैंडर्ड सिटीजन्स है उनको नेवी शिप्स के थ्रू इंडियंस को वापस लेके आएगी। सो एक ही MCQ इसमें से बनता है, डायरेक्ट MCQ आएगा तो नो मूव्स टू नेक्स्ट। एक वंदे भारत मिशन एक्सरसाइज है जिसमें एयरलाइंस के थ्रू गवर्नमेंट बाकी काफ़ी कंट्री से इंडियन जो स्टैंडर्ड है उनको लेके आएगा वापस। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, हरदीप सिंह पुरी, ये आई थिंक अर्बन मिनिस्टर भी यही है। तो वंदे भारत मिशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। सो दैट इज द एंड ऑफ सब फोल्डर नंबर 5। वी मूव टू सब फोल्डर नंबर 6, दैट इज डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। So savings from delayed foreign deals to push indigenous projects। वही है कि जो फॉरेन डील्स थी वो डिले होएगी क्योंकि वहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, उसकी वजह से जो सेविंग्स होएगी उस टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है कि हम अपने जो इंडिजिनियस जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके थ्रू जो हम डोमेस्टिक वेंडर्स से हम परचेज कर रहे हैं इक्विपमेंट्स उसको हम फास्ट ट्रैक करेंगे, जिसमें से प्रोमिनेंट है LCA जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स, बेंगलोर में इसके हेडक्वार्टर्स है वो बनाते हैं।
और कुछ है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, और पिनाका दैट इज़ अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो इसमें देखोगे एमसीक्यू क्या क्या बन सकते, ध्यान रखना। एक एमसीक्यू आपका एलसीएम में भी बन सकता है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है क्या चीज़ है, फाइटर जेट है। एक एमसीक्यू ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा एमसीक्यू आपका कि आकाश क्या है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, सरफेस टू सरफेस है, या सरफेस टू वाटर है, या फिर मल्टी बैरल लॉन्चर है, या एंटी टैंक मिसाइल है। इट इज़ अ एयर डिफेंस मिसाइल। तो दूसरा एमसीक्यू आकाश में से बन सकता है। तीसरा एमसीक्यू पिनाका में से पूछ सकते हैं कि पिनाका क्या चीज़ है, इट इज़ अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। आप देखोगे एक साथ में 40 मिसाइल्स लॉन्च हो सकती है, छोटी छोटी। तो आप देखना, इसकी वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल, काफ़ी इंटरेस्टिंग है पिनाका। तो इन तीनों में से तीनों पे एक एक एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। और चौथा ये सबसे इम्पोर्टेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। एक तो पूछ सकते हैं इसका हेड कौन है, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ दिस कमेटी। और पूछा जा सकता है कि इसके मेंबर कौन कौन है, दैट इज़ हेड तो हो गए प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह इसके, और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर इसमें है, और ये फॉर एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो आप देखो टोटल 5 मेंबर्स है इसके, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इसके ऊपर भी एमसीक्यू डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकता है, स्पेशली अगर मैं फेज़ 2 की बात करूँ तो फेज़ 1 में भी आ सकता है। तो आप देखोगे एक करंट अफेयर्स में से 1 2 3, फिर उसके बाद आपके रफ़ाले भी इसमें हैं। ये देखो यहाँ पे रफ़ाले भी था। रफ़ाले किस कंट्री का है, दैट इज़ फ्रांस के साथ डील हुई थी। इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। 4 एमसीक्यू। फिर 5वां एमसीक्यू आपका सीसीएस में से बन सकता है कि कौन हेड करता है, व्हाट इज सीसीएस की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो 6 एमसीक्यू बन गए, इसके मेंबर भी पूछे जा सकते हैं, 7 एमसीक्यू बन गए। तो देखोगे एक ही करंट अफेयर में 6-7 एमसीक्यू आपके फॉर्म हो रहे हैं। तो दैट्स हाउ यू हैव टू प्रोसीड। सो विल मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स नाउ। द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट टाइटल इज आइडिया थॉन। सो ये किसने लॉन्च किया है, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा ने, विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। तो इसके ऊपर एक एमसीक्यू बनेगा तो वो आपको बनना चाहिए। अब एमसीक्यू कैसे भी बन सकता है, वो सीधा पूछ सकते हैं कि आइडिया थिंक किसने लॉन्च की है, दैट इज़ दिस एनएमसीजी एंड एनआईयूए। दूसरा एमसीक्यू इसमें से बन सकता है कि आपका मतलब बन सकता है कि एनएमसीजी किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है या किसी और मिनिस्ट्री के अंदर है। 3-4 मिनिस्ट्री दे दी, सो 2 एमसीक्यू ये बन गए, ठीक है। तो और इसमें से आइडिया था किसका, इसका क्या एम क्या है, दैट इज़ फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट, की उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उनको क्लीन कर सकते हैं। तो देखोगे एक ही उसमें से 3 एमसीक्यू बन सकता है अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ओके, सो वी विल मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स प्रोजेक्ट कार्ड। अब एक प्रोजेक्ट है टू पुश प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिंग किट। अभी मुझे याद है आज ही न्यूज़ में आ रहा था, एलिसा करके कोई टेस्टिंग किट डेवलप की है, जिसकी अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जिसके काफ़ी रिजल्ट्स भी एक्यूरेट है। दैट इज़ कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए किट है। अभी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं चाइना से, कोरिया से। बहुत दिक्कत आती है उसमें भी। अभी पीछे चाइना से किट्स मंगाई थी, वो भी फॉल्टी निकल आई थी। तो काफ़ी प्रोजेक्ट चल ही रहा था, और एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि स्पेसिफिक, जिसमें हम कोशिश करेंगे, देखो टारगेट देखो, 10 मिलियन रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट बाय जुलाई। काफ़ी ह्यूज टारगेट है। 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 करोड़ हम जुलाई तक हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने टारगेट रखा है कि हम कर पाएंगे। देखो 2 तरह की टेस्टिंग किट्स होती है, एक तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, और एक होती है RT-PCR, दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। दोनों ही आपके एग्ज़ाम में कभी भी आ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन हो गया प्रोजेक्ट कार्ड किसने लॉन्च किया है, दैट इज़ नीति आयोग एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तीसरा एमसीक्यू ये हो गया। तो इस तरह से एमसीक्यू आपके 3 एमसीक्यू कम से कम इसमें से बन सकते हैं। ओके, सो वी विल मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश सीएम ने आयुष कवच लॉन्च किया आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए। अब पता नहीं, अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने मैंने फर्स्ट वीक में कराया था, एक ऐप लॉन्च की है। अब हर स्टेट भी अपनी अपनी आयुर्वेदिक के आयुष कवच और ये सब क्यों लॉन्च कर रहा है, आई डोंट नो। क्योंकि एक ऐप लॉन्च कर दिया आपने हेल्थ मिनिस्ट्री, जैसे यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, तो आप उसको प्रमोट करो ऑल ओवर इंडिया। अब 10-20 ऐप बना दोगे, हर स्टेट अपने ऐप बनाएगा। अब जो बंदा है वो भी कंफ्यूज, भाई मैं कौन सी ऐप इंस्टॉल करूँ, और गलती से उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसमें कुछ है, तो हो जाता है कंफ्यूज यार।
क्योंकि हर चीज़ तो कोई नहीं कर सकता ना, मतलब आप 10 नुस्खे बना दो कि हर कोई 10 नुस्खे एक साथ कर लेगा। उसने कहा काढ़े में ये डालो, उत्तर प्रदेश ऐप ने कहा कि काढ़े में ये नहीं ये डालो, बंदा मतलब आप कहेगा, वो भी सोचेगा भाई कौन सा बेटर है। अरे एक ऐप बनाओ, उसको अच्छी तरह से उसमें इंफॉर्मेशन गैदर करो और उसमें डालो, उसको प्रमोट करो, जैसे आप आरोग्य सेतु का कर रहे हो। दैट इज़ अ गुड थिंग। ये क्या चीज़ है। एनीवेज एग्ज़ाम में आ सकता है, तो उसके लिए आपको याद रखना है। ऐसी मध्य प्रदेश ने भी एक ऐप लॉन्च की, ऐप नहीं उसने एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें वो मुझे याद है अप्रैल के उन्होंने कहे थे, एक पुड़िया बनाई थी उसने, पिपली और काली मिर्च और तीसरा पता नहीं क्या क्या डाला था उसने मिलके, वो 1 करोड़ लोगों को वो पुड़िया देगी, दूध के साथ लेनी है, पता नहीं क्या है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। सो मैं कवर कर चुका हूँ। सो हाँ ये रही, सॉरी फर्स्ट वीक में नहीं, इसमें ही है। ये देखो, आयुष संजीवनी ऐप यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। भाई वही मैं कह रहा था, वही जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आपने ये ऐप बना दी तो इस पर फोकस किया जाए ना। हर स्टेट अपनी अपनी ऐप क्यों बना रहा है फालतू में। तो ये इस पे से भी आपके 1-2 MCQs बन सकते हैं, जैसे ऊपर से बन सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, ICMR इंडिया पोस्ट फॉर्म पार्टनरशिप टू फॉर्म। तो ये सिंपल है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट ये मैंने आंसर क्यों दी, क्वेश्चन क्यों दिया है कि हेडक्वार्टर्स ऑफ ICMR क्या है। पहले मैं अपर कंट्री में दे चुका हूँ, बट आई थिंक कभी पूछा जा सकता है, फिर से मैंने रिपीट कर दिया, दैट इज़ न्यू दिल्ली। ये पार्टनरशिप ICMR ने इंडिया पोस्ट के साथ किया, वेरी रेयर कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू कैन स्किप दैट आल्सो, बट यहाँ टू रिमेंबर हेडक्वार्टर्स ऑफ ICMR। सो दैट इज द एंड ऑफ सब फोल्डर नंबर 6। इतना ही है सब फोल्डर नंबर 6 में से। वी विल मूव टू सब फोल्डर नंबर 7, दैट इज रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, यूनिसेफ की जो एक रिपोर्ट है, देखो यूनिसेफ इज़ अ UN बॉडी, तो इसकी रिपोर्ट जो भी होती है इंपॉर्टेंट होती है। इसने टाइटल किया लोस्ट एट होम। इसका थीम है द रिस्क एंड चैलेंजेस ऑफ इंटरनेट डिस्प्ले चिल्ड्रन एंड अर्जेंट एक्शन नीडेड टू प्रोटेक्ट दैम। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SEBI और RBI के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसको, कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यूनिसेफ का है तो एक तो रिपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं, एक MCQ उसकी थीम पूछी जा सकते हैं, दूसरे MCQ यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स पूछे जा सकते हैं। आई थिंक मैं पहले आपको दे चुका हूँ यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स क्या है, आई थिंक आई हैव गिवन इट हियर आल्सो। यस, यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क, USA में। नाउ नेक्स्ट सब फोल्डर, बस सब फोल्डर 7 में एक ही रेलेवेंट था आपके एग्जाम के लिए। दिया मिर्जा UNEP, दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, अगेन UN की बॉडी है। एक्सटेंडेड टर्म गुडविल, सॉरी एक्ट्रेस की जो गुडविल एम्बेसडर है उसका टर्म 2020 तक एक्सटेंड कर दिया। डेफिनेटली वन क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है आपका कि कौन है दिया मिर्जा है, और UNEP के ऊपर दूसरा MCQ बन सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है दूसरा, और तीसरा इसके हेडक्वार्टर्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके हेडक्वार्टर्स। UNEP के हेडक्वार्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका एक पूरा टॉपिक है RBI ग्रेड B में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ध्यान रखिएगा, ये 2-3 MCQ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो वी मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स न्यू रोड टू कैलाश मानसरोवर। डिफेंस मिनिस्टर ने एक रोड इनॉग्रेट किया, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है दैट इज़ लिपुलेख पास। ये आ सकता है आपका लिपुलेख पास कहाँ पे, उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत के ट्रांजेक्शन पे आप देखोगे इंडिया के पैर पे, वहाँ पे लिपुलेख पास है। आप कहोगे सर पास क्या होता है, क्या होता है, जैसे माउंटेन्स होते हैं, यू माउंटेन्स होते हैं हिमालय की, ये जो बीच में होती है ना जहाँ से इंसान आ जा सकता है, दीज आर नोन है पासिस। तो ऐसे बहुत ही बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पासिस है जो मैं आपको इंडिया के मैप जब मैं कराऊँगा उसमें मैं डिटेल में कवर कराऊँगा डेफिनेटली। ओके, सो दैट्स इज द एंड ऑफ सब फोल्डर नंबर 8 एनवायरनमेंट। वी विल मूव टू सब फोल्डर नंबर 9। कुछ अवार्ड्स थे आपकी बार जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वन इज दी DST अवार्ड, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि सौरभ लोधा को मिलाया है, दैट इज अ यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020। डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आपके आ सकता है, ठीक है। किसको DST ने अवार्ड दिया फॉर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज सौरभ लोधा। ओके, यही क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, और ये भी पूछ सकते हैं किस पर्पस के लिए, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी पास सिलिकॉन एंड नैनो इलेक्ट्रिक डिवाइस बेस्ड ऑन 2 डायमेंशनल वंडरवास। अब देखो ये साइंस का टर्मिनोलॉजी है, कहने को मैं बता सकता हूँ क्या, बट ज़रूरी नहीं है आपको इसके डिटेल में जाना, बट ये ध्यान रखो कि इस चीज़ के लिए इसको ये अवार्ड मिला है, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये। इसके डिटेल में UPSC होता जो ज़रूर मैं आपको बताता,
कि क्या ये होता है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और ये क्या लॉजिक ट्रांजिस्टर होते हैं, बट आरबीआई के लिए बस ये इंफॉर्मेशन इनफ है। सो सर फॉर नंबर 10 इंपॉर्टेंट डेज, कोई इंपॉर्टेंट डेज मुझे नहीं मिला, कुछ डेज थे लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं दिया। वी टू इंटरनेशनल न्यूज़। अब यहाँ पे ईरान जी ने एक नया कोई फॉर्मूला निकालने की कोशिश की, नई करेंसी निकाल दी जी, तोमन करके। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली सेबी एंड आरबीआई दोनों के लिए। टैकल इन्फ्लेशन, पहले इसकी रियाल थी, अब इसकी तोमान है, और 1 तोमान इज इक्वल टू 10,000 रियाल्स। ईरान की कैपिटल भी पूछ सकती है जो कि है तेहरान। तो देखोगे 2-3 एमसीक्यू इसमें से बनते हैं। अब इसमें से ये कैसे इन्फ्लेशन टैकल करेंगे, देखो डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता, मुझे एक बार ध्यान से पूरे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कैसे ये प्लान कर रहे हैं। बहुत ही नायाब आइडिया है कि एक नई करेंसी निकाल दो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट, वी विल सी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। बस उसमें इतना ही था सफर 11 में। सफर नंबर 12 में आर्ट एंड कल्चर में जीआई टैग फ्रॉम रिसीव्ड कश्मीर सैफरन को भी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़। एक देखो एक एमसीक्यू मैंने जीआई टैग में से पहले बनाया था, जिसमें क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा। एमसीक्यू में मैंने दिया था जो आपकी फर्स्ट वीक की वीडियो है, जो फर्स्ट वीक ऑफ मई की वीडियो है, उसमें वो एमसीक्यू है जीआई टैग के ऊपर ही है। अब कश्मीरी सैफरन को भी मिल गया, सो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो एप्लीकेशन टैग ऑफ फाइल बाय दिस, ये नहीं आएगा कि किसने फाइल की थी, ये ज़रूरी नहीं है। यूजली जो आपकी जो लोकल जो होती है जो लोकल एजेंसीज होती है वही टैग ये फाइल करते हैं, बट ये मैं गलती से मैंने लाइन पोर्ट कर दी, ये इंपॉर्टेंट नहीं थी। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट सब फोल्डर, दैट इज ऑब्ituaries। के.एस. निसार अहमद पद्मश्री अवार्डी एंड राउंड पोएट पासिस अवे। देखो पद्मश्री अवार्डी थे और काफ़ी नामी पोएट थे, तो ये आपके मैंने दिए है। देखो ऑब्ituaries बहुत काफ़ी होती रहती है, मैं सारी ऑब्ituaries नहीं देता, मैं महीने में आपको 4, 5 या 6 ऑब्ituaries ही दूंगा ज़्यादा। और एक ही क्वेश्चन आना है आपका मैक्सिमम, एक क्वेश्चन आपके सेबी में या एक क्वेश्चन आपके आरबीआई में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके लिए मैं आपको 1000 या 2000 ऑब्ituaries नहीं दूंगा रटने को, ठीक है। मैक्सिमम अगर 5 ऑब्ituaries मैं दे रहा हूँ 6 महीने, 25-30 ऑब्ituaries होगी जो आपको मैक्सिमम याद रखनी है। हो सकता है उससे भी कम दूँ, रिमेंबर दैट मच। 99.9% उसमें से ही आएगा। 0.1% अगर कोई आया तो उसके लिए मैं आपको 2000 ऑब्ituaries रटने को नहीं बोलूँगा, ओके। मेरा है कि यू मैक्सिमाइज योर स्कोर, स्टैटिक इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ज़्यादा टाइम करंट अफेयर्स में से रट्टा मारने में मत बर्बाद करना। एक क्वेश्चन की वजह से अपने 20-30 क्वेश्चन जो आप स्टैटिक में स्कोर कर सकते हो उसको मत खो देना। डोंट बी सो मच फुलिश, मैं आपको बार बार मैं ये वार्निंग देता रहता हूँ। एनीवेज लेट्स गो अहेड टू सफर नंबर 14, सोशल इश्यूज। ईएसआई का पोर्शन है, ईएसआई इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो मध्य प्रदेश है बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन। ये आपका फेज 1 में भी आ सकता है और आपका फेज 2 में भी आ सकता है। पहली स्टेट है, देखो जो भी चीज़ पहली होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ऐसा आएगा विच इज़ द फर्स्ट स्टेट विच हैज़ प्रोवाइड मिड डे राशन एट होम, दैट इज़ मध्य प्रदेश। डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। और मिड डे मील स्कीम आपको आई होप पता होनी चाहिए क्या है। मैंने स्कीम्स में डिटेल में करवाई थी, जैसे जो भी होता है जो आपका ये है क्या है ये आर्टिकल 21A के अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स को सबको ये फ्री मील मिलती है स्कूल में। तो डिटेल में आप देखो, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। ऑलरेडी मैं ऑफलाइन क्लास में स्कीम्स में मैं करवा चुका हूँ, फिर से जब स्कीम्स में करवाऊँगा, वीडियोस बनाऊंगा या लाइव कराऊंगा तो मैं कवर करूँगा। सो ड्रास्टिक लेबर रिफॉर्म बाय दी बीजेपी रूट से 3 स्टेट्स है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इन्होंने लेबर लॉस की छुट्टी कर दी है। इन्होंने कहा बाहर में लेबर लॉस क्या किया इन्होंने, फ्री हैंड टू एम्प्लॉयर्स टू हायर एंड फायर वर्कर्स, नो लेबर इंस्पेक्शन और गवर्नमेंट इंस्पेक्शन, नो रोल ऑफ द यूनियंस, ओके। तो इसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट होना लाजमी है। लेबर यूनियन अनहैप्पी होएगी और बिजनेस वाले हैप्पी होएंगे। तो ये तो अब देखो लेबर कोड की भी बात हो रही थी, काफ़ी न्यूज़ में था कि 38 के आसपास लेबर लॉज है, उसको हम सिर्फ 4 लॉज में हम कंबाइन करेंगे। बट अभी तक गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई थी क्योंकि प्रोटेस्ट काफ़ी होता था। बट गवर्नमेंट ने अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, पर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बोला होगा कि यस यू गो अहेड विद दैट। एंड क्योंकि अभी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, सो दे आर सेइंग लेट्स गो, मतलब हमें इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना है और जितना हम इंसेंटिव बिजनेस को दे सकते हैं हम देंगे।
बट क्या सही है ऐसे टाइम पे जहाँ पे इतना ज़्यादा लेबर माइग्रेशन हो रहा है? That is up to you to decide. You have to decide whether it is right or wrong. I leave this topic up to you, for you to decide. Okay, now last सब folder miscellaneous CIC के ऊपर है। CIC ने क्या है भाई, जो कोविड-19 के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो उसका रिकॉर्ड प्रॉपर रखो, क्योंकि मैं कभी भी इसके RTA में डिटेल्स पूछी जा सकती है और आपको देनी पड़ेगी। जैसे PM केयर्स फंड में इतना फंड आया, ओपोजिशन पार्टीज बोल रहे हैं भाई कहाँ जा रहा है पैसा, आप उसके ऑडिट करो, प्रॉपर बताओ, एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट टेलिंग। सो ये नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए भाई। मेरे जैसे 10,000 करोड़ आए PM केयर्स फंड में, कहाँ से है वो पता होना चाहिए, और मैं कहाँ स्पेंडिंग हो रही है उसकी वो पता होना चाहिए, और पब्लिक वेबसाइट में पूरा डिस्प्ले करो ना। क्यों इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों लोग कह रहे हैं कि बताओ और आप बता नहीं रहे, क्यों? आई डोंट नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे ट्रस्ट लूज होता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स का। ओके, सो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, व्हाट इज CIC? इट इज़ अ स्टैच्यूटरी बॉडी। आपको पता होगा RTA एक्ट 2005 में ये फॉर्म हुई थी, उसके तहत बनाई गई थी, ऑपरेशन तो बाद में थी। इसके अंदर एक CIC होता है और एक 10 इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा तो CIC की पूछ सकते हैं कि करंटली CIC कौन है, दैट इज़ बिमल जुल्का। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ 10 CIC ऑफ इंडिया। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूछेगा 10th है 9th है। और CIC स्टैच्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये पूछा जा सकता है, दैट इज सेकंड MCQ। और तीसरा ही किस एक्ट के अंडर फॉर्म हुई थी। देखोगे आप 3 MCQ इस करंट अफेयर्स में से आपके बन सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ मे। अप्रैल में जितने भी वीक थे वो या तो 2 पार्ट्स में बने थे या 3 पार्ट्स में बने थे। मई का जो फर्स्ट वीक था, क्योंकि उसमें 2 डेज थे फर्स्ट एंड सेकंड में, वो एक पार्ट में बन गया था। और इस वीक में भी लकीली वी आर एबल टू कवर इन 1 पार्ट। हालांकि थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, आई थिंक 1 आवर से ऊपर की हो गई है। आधे घंटे की मैं 2 बना सकता था, बट लेस कंप्लीटेड इन 1 ओनली। एंड दैट्स इट। कोई भी डाउट हो मेरे से पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो डू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. Do share it and subscribe the channel and click on the bell icon and keep on sharing if you like the effort we are doing. And thank you all. We will meet with I will come with the quiz video soon. कल सुबह likely मैं इस वीडियो को लेके आऊँगा आपके लिए। So stay tuned for the quiz video second week of May. Till then, thank you. Bye.